Hello students, welcome to the class. Today we are going to see the topic matrix, that is introduction of matrix we are going to see here, and we'll see the definition, types of matrices and some basic definition associated with the matrices. So let us proceed. The term matrix was introduced by the 19th century English mathematician James Sylvester, but it was his friend, the mathematician Arthur Cayley, who developed the algebraic aspect of the matrix in two papers in 1850s. So हम देख लेते हैं कि जेम्स सिल्वेस्टर कौन था और आर्थर कैली. सो दिस टू आर द गाय जिन्होंने ये मैट्रिक्स थ्योरी यहाँ पे इन्वेंट की हुई है. नाउ प्रोसीड फर्दर, विल सी द डेफिनेशन ऑफ इट, दैट इज ऑफ मैट्रिक्स. A matrix in plural, it is called as matrices or matrices, is a rectangular array of numbers, symbols or expressions arranged in a row and columns. Okay, it is just a arrangement of the numbers, symbols and expression in rows and column. Matrices are commonly written in a box bracket. This should be noted. And the horizontal and vertical lines of entries in a matrix are called rows and column respectively. Here I have written one matrix, okay, where I have generalized the entries as A11, A12, A1n. Then in the second row A21, A22, A2n. In the last row AM1, AM2 and AMN. So these are the nothing but rows we are having, the horizontal lines, and the vertical lines known as it is what, column. वैसे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया हूँ 2/3 का एग्जाम्पल, जिसमें मैंने 2 रोज लिए हैं और 3 कॉलम्स लिए हैं. सो दिस 2 रोज एंड 3 कॉलम्स डिफाइन इट इज व्हाट, ऑर्डर फॉर दैट गिवन मैट्रिक्स. तो इसको हम ऑर्डर कैसे लिखते हैं, नीचे में इसके इट इज 2 into 3. द फर्स्ट नंबर डिनोट नंबर ऑफ इट इज व्हाट, रोज, एंड द सेकंड नंबर डिनोट इट इज नंबर ऑफ इट इज कॉलम्स. ओके, ये आपको क्लियर होना चाहिए. जैसे अगर मैंने ये एलिमेंट लिखा A11, okay, this 1 denote the position of an element. Position means this is in the first row and first column. If I consider this A22, this means that this element is in the second row, okay, and the second column. Likewise, अगर हम लेते हैं it is what, AM1. AM1 means it what, this element is in the mth row and the first column. Likewise, we can say A21 is in the second row and the nth column. So this matrix is having the order, what is it, m cross n, because it contains the m number of rows and n number of columns. So I suppose how we represent and how we find out the order of this matrix. Now matrix A with m rows and n columns is denoted by A m cross n, and m cross n is called order of matrix A. We write A equals to Aij m cross n, where Aij is an element of ith row and jth column. I is ranging from 1 to m and j will be ranging from 1 to n. ठीक है, this is the notation that I have just shown to you, that is कैपिटल A जो हम लेटर यूज कर रहे हैं, मतलब कैपिटल लेटर्स हम जनरली यूज करते हैं मैट्रिक्स को डिनोट करने के लिए, और अगर मुझे एलिमेंट्स डिनोट करते हैं तो मैं स्मॉल a का यूज करता हूं, दैट इज Aij का. ओके, विद दिस m क्रॉस n एज द ऑर्डर ऑफ दैट पर्टिकुलर मैट्रिक्स. तो दिस I इज नथिंग बट व्हाट, ith रो, एंड j विल बी इट इज कॉल्ड एज jth कॉलम फॉर दैट पर्टिकुलर एलिमेंट ऑफ अ मैट्रिक्स. Now some definitions associated with the matrices and types of matrices we are going to see. हम इसको थोड़ा क्विक देखेंगे. मैंने यहाँ पे मैक्सिमम डेफिनेशंस और जितने भी टाइप्स है उसको कवर करवाए हूं, और ये गेट पॉइंट ऑफ व्यू बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज कुछ क्वेश्चंस डायरेक्टली डेफिनेशन पे पूछे जाते हैं मैट्रिक्स के ऊपर. तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा अच्छे से आप लोग. अ नल मैट्रिक्स और अ जीरो मैट्रिक्स. सो इट इज डिफाइंड एज अ मैट्रिक्स A m cross n having all the elements 0 is called as null matrix और जीरो मैट्रिक्स भी कहते हैं, and it is denoted by the big zero. एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे सभी एलिमेंट जीरो अगर मैट्रिक्स में, इट इज कॉल्ड एज व्हाट, जीरो मैट्रिक्स. इसका ऑर्डर 2/2, इसका ऑर्डर 3/1, इसका ऑर्डर 3/3. These are all the examples of null matrix. Then we define the row matrix and column matrix. So matrix having single column is called as column matrix और column vector. Column vector भी कहते हैं, और इसको हम एक अलग तरीके से डिफाइन कर सकते हैं. Any m cross n matrix is called what, column matrix. m cross n मतलब m number of row and only one number of column. जैसे यहाँ पे एग्जांपल लिख दिया हमने, we are having a single row and 4 columns. In the second example we are having single row and the 2 columns. वैसे हम डिफाइन करते हैं, it is what, row matrix. A matrix having single row is called as row matrix or a row vector. और इसे हम डिफाइन कर सकते हैं, any 1 cross n matrix is called row matrix. Example, we are having a single row here, 3 columns, single row with a 4 columns. I suppose ये क्लियर है आपको. Now moving further for the next definition, हम थोड़ा फास्ट लेंगे सभी चीजों को, बिकॉज हमको मैक्सिमम डेफिनेशन कवर करनी है. मैंने नियर अबाउट 30 डेफिनेशन यहाँ पे कवर की है. A square matrix,
A matrix having same number of rows and column is called as the square matrix. It is very simple. जैसे अगर पहला एग्जांपल देखते हैं तो 1 by 1 मैट्रिक्स है, सेकंड में 2 by 2, थर्ड में 3 by 3 और फोर्थ में व्हाट 4 by 4. So मतलब number of rows and the number of column in the square matrix is always same. Then determinant of square matrix we define. I consider one example with that I will explain you. The determinant of square matrix A is denoted by what? This vertical line A. आपको मैं बताएं कि स्क्वायर ब्रैकेट जो हम यूज करते हैं वो मैट्रिक्स के लिए यूज करते हैं या कभी कभी राउंड ब्रैकेट भी यूज किए जाते हैं मतलब मैट्रिक्स के लिए, और वर्टिकल लाइन ऑलवेज डिनोटेड इज व्हाट? डिटरमिनेंट. ये मेन डिफरेंस है, इट इज नोटेशन बिटवीन द मैट्रिक्स एंड द डिटरमिनेंट. वो आपको पता होना चाहिए. मैं एक और क्वेश्चन आपको पूछूंगा सामने में कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मैट्रिक्स एंड द डिटरमिनेंट, दैट आई एम गोइंग टू टेल यू. सो पहले तो हम मैट्रिक्स ए लिख लेते हैं और इसका डिटरमिनेंट निकालते हैं इस मैट्रिक्स का. सो दिस इज इन बॉक्स ब्रैकेट, दिस इज इन वर्टिकल लाइन. क्रॉस मल्टीप्लाई करना है आपको सिर्फ यहां पे. ओके, जब भी आप डिटरमिनेंट निकालते हैं कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स का, सो यहां पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब क्या करते हैं? 7 into 4 लेंगे. ओके, दैट वी आर हैविंग 28. देन माइनस सब्ट्रैक्शन लेते हैं, इट इज 4 into -1 का. 4 into -1 is what? It is -4, which is written here, and the answer is what? It is 32. तो ये 2 by 2 मैट्रिक्स का हम डिटरमिनेंट इस तरह से निकालते हैं. वैसे ही फिर हम निकालते हैं, इट इज 3 by 3 का डिटरमिनेंट. सो लेट अस सी, 3 by 3 के लिए हमारे पास ये मैट्रिक्स है, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए रहेगा, इट इज लाइक दिस. सो आई सपोज आपको वैसे होगा पता, बट स्टिल इन शॉर्ट मैं आपको बता देता हूं. हम यहां पे इसको एक्सपांड कर रहे हैं, ये फर्स्ट रो से. आप कोई भी रो से एक्सपांड कर सकते हैं या फिर कोई भी कॉलम से एक्सपांड कर सकते हैं, ये आपको पता होगा. ठीक है, तो मैं यहां पे फर्स्ट रो से एक्सपांड करता हूं, जिसमें हम पहला जो साइन है 1 के लिए वो पॉजिटिव रखेंगे, 2 के लिए जो साइन है वो नेगेटिव रखेंगे, देन 3 के लिए इज व्हाट? पॉजिटिव. सो वी गो विद अल्टरनेट साइन, इट इज प्लस माइनस एंड प्लस. ये पोजीशन जो होता है एलिमेंट का, अकॉर्डिंगली हम साइन को डिसाइड करते हैं, वो आपको पता ही होगा. सो जस्ट बी इवैल्यूएट हियर नाउ. 1 अगर हम लेते हैं यहाँ पे, तो ये 1 जहां पे प्रेजेंट है उस कॉलम और रो के एलिमेंट हम एलिमिनेट कर देंगे, और जो भी बचेगा उसका हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ले लेंगे. 3 into 12 and 5 into it is what? 4. तो ये हमारा इस ब्रैकेट में आ गया. और फिर अगर हम 2 से एक्सपांड कर रहे हैं उसको, सो दैट टाइम हम 2 में जो रो और कॉलम में जो प्रेजेंट है वो, ठीक है, उसको हम यहाँ पे छोड़ देंगे. तो हमने यहाँ पे ये रो और ये कॉलम छोड़ दिया. 1 into 12 और 5 into 1 ये हम कर लेंगे जो यहाँ पे लिखा हुआ है. सेम 3 के लिए फिर 3 जिस कॉलम में है, जिस रो में प्रेजेंट है, उसको छोड़ देंगे और फिर इन दोनों का हम मल्टीप्लिकेशन कर देंगे और इसको सिंप्लीफाई कर देंगे. एंड इट इज वेरी सिंपल टू डू द मल्टीप्लिकेशन. देन तो मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आपका फाइनल आंसर आ जाता है डिटरमिनेंट का, इट इज व्हाट? 5. ये तो सिंप्लीफिकेशन आप कर लेंगे, मैंने यहाँ पे करके बताया हूं. सो दिस वे वी फाइंड आउट व्हाट? डिटरमिनेंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स. ऐसे हम 3 by 3 का भी निकालते हैं, 4 by 4 का भी निकाल सकते हैं, बट जनरली 4 by 4 के क्वेश्चंस कम आते हैं जिसमें हम कुछ डिटरमिनेंट वैल्यू निकालनी पड़ती है, बहुत ही रेयर होते हैं. सो अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आएगा तो हम उसको सामने देख लेंगे. नाउ मूविंग फर्दर, दो मैं और डेफिनेशन यहाँ पे बता रहा हूं. इट इज एसोसिएटेड विद द वैल्यू ऑफ अ डिटरमिनेंट. सो इफ डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू 0, देन स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड सिंगुलर मैट्रिक्स. मतलब डिटरमिनेंट का वैल्यू अगर 0 आ रहा है तो मैट्रिक्स इज सेड टू बी व्हाट? सिंगुलर मैट्रिक्स. And if determinant of A is not equals to 0, then the square matrix A is called non-singular. It is very simple. और याद रखने में भी बहुत सिंपल है कि determinant is 0, we said is singular matrix. If determinant is non-zero, then it is called as what? Non-singular matrix. तो generally हम अगर ये words use करते हैं singular matrix, non-singular matrix, so it is directly associated with the value of a determinant, whether it is a 0 or not 0. Now move further. That is fifth definition, diagonal matrix. So diagonal matrix का एक simple सा definition, a square matrix whose non-diagonal elements are 0 and at least one diagonal element is non-zero. यहाँ पे diagonal होना चाहिए, ये non-diagonal हो गया. Then it is called as what? Diagonal matrix. So let us see it is what examples. A equals to, we are having 1, 3, 12 as the diagonal entry. This is called as the principal diagonal for the matrix. Okay, उसी से हम डील करते हैं. बाकी जो नॉन डायगोनल एंट्रीज है वो यहाँ पे 0 है. मतलब अगर 3 by 3 का मैट्रिक्स लेते हैं तो हमारी 6 एंट्रीज 0 होती है नॉन डायगोनल में कम से कम. उसके बाद अगर हम 2 by 2 मैट्रिक्स लेते हैं तो देखिए A11, A22 इसको हमने नॉन जीरो एंट्री कंसिडर कर लिया है. दिस आर द 0 एंट्री and this A equals to 1, 0, 0, 1. This is also the example of diagonal matrix. I suppose it clear है. So elements A11, A22, A33 are called as what? Diagonal elements, and the line on which they lie is called what? Principal diagonal of the matrix, जो मैंने अभी आपको बताया. And now एक नोट आपको करना है यहाँ पे. In a diagonal matrix, all the diagonal elements are not zero. सभी diagonal elements 0 नहीं होने चाहिए. मानो अगर 0 हो गए तो क्या हो जाएगा? Otherwise it will become what? Null matrix.
ओके तो अगर पूरे ही जीरो होते हैं तो दैट इज नल मैट्रिक्स, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द डेफिनेशन ऑफ नल मैट्रिक्स एंड डायगोनल मैट्रिक्स। तो एटलीस्ट एक तो भी मतलब एंट्रीज हमारी क्या होनी चाहिए, नॉन जीरो। क्लियर। नाउ फर्दर we define what unit matrix, or it is also called as what identity matrix. So a diagonal matrix having all diagonal elements as unity is called as what unit matrix or identity matrix. It is denoted as it is what I. तो अगर हमारे पास 1 by 1 का diagonal matrix है एंड उसमें अगर एंट्री हमारी क्या है सिर्फ 1, देन इट इज कॉल्ड एज व्हाट यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1. देन यहां पे देखिए 1 0 0 1, दिस इज द यूनिट मैट्रिक्स ऑफ द ऑर्डर 2, जिसमें डायगोनल एंट्रीज 1 1 है और नॉन डायगोनल क्या हो गए 0. और यहां पे डायगोनल एंट्रीज व्हाट 1 1 1 वी आर हैविंग एंड नॉन डायगोनल एंट्रीज आर 0. दिस इज द यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3. इसको हम I3 I2 और I1 से भी डिनोट करते हैं. उसके बाद हम डिफाइन करते हैं स्केलर मैट्रिक्स. A diagonal matrix having all diagonal elements as same is called as a scalar matrix. मतलब diagonal entries अगर same रहती है then it is called as what it is scalar matrix. Now next the identity matrix को भी हम क्या scalar matrix कह सकते हैं because यहाँ पे diagonal entries क्या है, it is what 1 1 1. Now moving further, transpose of a matrix. A simple definition: transpose of a matrix can be obtained by interchanging rows and column. एंड इट इज डिनोटेड एज व्हाट a टू द पावर t. इसको हम a ट्रांसपोज रीड करते हैं या इसको हम a डैश से भी इसको डिनोट करते हैं. तो ये नोटेशन है, आपको याद रखना है. इफ a इज ऑर्डर m क्रॉस n देन a ट्रांसपोज विल हैविंग द ऑर्डर n क्रॉस m. इट इज सिंपल. देन एग्जांपल देखते हैं. यहां पे देखिए ऑर्डर 2 क्रॉस 4 है, यहां पे दैट इज 2 by 4 है a का, मतलब 2 रोज है और 4 कॉलम्स है. और ट्रांसपोज अगर निकालना है तो हम क्या करते हैं, एक तो रोज को कॉलम में चेंज कीजिए या कॉलम को रोज में चेंज कीजिए, दोनों में से एक चीज करना है. तो मैं अगर रो को कॉलम में लिखता हूं तो ऐसे लिख पाऊंगा 7 4 0 1 यहां पे, और इसके बाद 4 - 5 1 2 यहां पे मैंने कॉलम में लिख दिया. तो ये मिल गया मुझे व्हाट ट्रांसपोज ऑफ अ गिवन मैट्रिक्स. ये डेफिनेशन को याद रखिए बिकॉज इसका हम सामने में यूज करने वाले हैं. नाउ उसके बाद ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स. तो ट्रेस डिफाइंड एज द सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड द ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स. सो हम क्या करते हैं, सिर्फ डायगोनल का सम करते हैं, उसे हम कहते हैं ट्रेस. सो इट इज 1 + -3 + 12. ये हमने कर दिया, आंसर इज 10. सो 10 इज कॉल्ड एज द ट्रेस ऑफ दिस पर्टिकुलर A. सो नाउ डिफाइन द सिमेट्रिक मैट्रिक्स. अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हम यहां पे डिफाइन करेंगे और इसका डेफिनेशन आपको याद रखना है बिकॉज यही डेफिनेशन सिमिलर है देन हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स के लिए. सो हम प्रोसीड करते हैं विद सिमेट्रिक मैट्रिक्स. स्क्वायर मैट्रिक्स A which is Aij, it is an n cross n matrix we are having, is called symmetric if Aij equals to Aji for all Inj. Hence for the symmetric matrix A will be equals to the A transpose. एक तो आप डेफिनेशन ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि A और A ट्रांसपोज सेम रहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स में, या अदरवाइज Aij एलिमेंट विल बी सेम एज व्हाट Aji. दिस डिनोटेड इज व्हाट ith रो jth एलिमेंट, दिस डिनोट jth रो एंड ith एलिमेंट. तो ये दोनों अगर सेम रहते हैं देन मैट्रिक्स इज सेड टू बी व्हाट सिमेट्रिक मैट्रिक्स. और डायगोनल एलिमेंट्स हमारे सेम रहेंगे, दैट में बी इट इज व्हाट 0 हम कह सकते हैं या अदरवाइज रियल नंबर. यहां पे देखिए ये जो एलिमेंट है 5, इसका पोजीशन क्या है, इट इज व्हाट दिस इज द इन द फर्स्ट रो एंड द सेकंड कॉलम, मतलब इट इज व्हाट 1 2. वैसे फिर 2 1 हम देखेंगे तो ये वाला एलिमेंट है 2 1, मतलब दैट इज इन द सेकंड रो एंड द फर्स्ट कॉलम, तो दोनों सेम है. वैसे यहाँ पे 1 3 पोजीशन इसका है और इसका 3 1, ये दोनों सेम है. दिस इज 2 3 पोजीशन एंड दिस इज व्हाट 3 2 पोजीशन. तो इस तरह से आपके एलिमेंट्स मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं, देन that matrix is said to be it is what a symmetric matrix. This is the example for the 2 by 2 matrix. 1 2 is same as what it is 2 1. Now define the skew symmetric matrix. A square matrix A with element Aij of n cross n order is called skew symmetric if Aij equals to minus of Aji for all Inj. Hence for the skew symmetric matrix A will be equals to minus of A transpose. Thus the diagonal elements of the skew matrix are all 0. क्यों 0 है, यहीं से आपको पता चलता है कि डायगोनल एलिमेंट 0 होनी चाहिए बिकॉज कंडीशन क्या बोलती है Aij इक्वल्स टू माइनस ऑफ Aji. तो यहां पे जो ith रो और jth कॉलम पे जो एलिमेंट है दैट शुड बी सेम एज द jth कॉलम एंड ith रो पे जो एलिमेंट है विद माइनस साइन. ओके, ऐसा अगर होता है देन दैट मैट्रिक्स इज सेड टू बी व्हाट इट इज स्क्यू सिमेट्रिक. अब यहां पे डायगोनल एलिमेंट 0 कैसे होगी, देखिए जैसे अगर मैं लिखता हूं यहां पे अगर डायगोनल एलिमेंट मतलब कौन से एलिमेंट रहेंगे वो Aii, तो Aii इक्वल्स टू माइनस Aii. ये पॉसिबल है क्या, दिस कांट बी पॉसिबल. ओके, पॉसिबल ही नहीं हो सकते, देयरफॉर द डायगोनल एंट्री शुड बी व्हाट 0. और इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, देखिए कैसा Aii प्लस Aii इक्वल्स टू 0. इसको हम लिखेंगे 2Aii इक्वल्स टू 0. इसी का मतलब देखो 2 तो 0 नहीं है,
तो ए आई आई विल बी इक्वल टू 0, मतलब डायगोनल एलिमेंट्स क्या आनी चाहिए हमारी 0। तो ये नोट कर लीजिए, बिकॉज गेट एग्जामिनेशन में ऐसा पूछा गया था कि डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर इट इज 0, नॉन 0 एंड लाइकवाइज, तो इट इज ऑल 0 के, ये आपको नोट करना है। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका स्क्वायर दैट इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। We are having A equals to this quantity, that is जिसमें डायगोनल एंट्री 0 0 है, और नॉन डायगोनल में देखिए यहाँ पे ये पोजीशन है इट इज व्हाट 1 2 और ये 2 1, तो मैग्नीट्यूड में दोनों सेम है, बस साइन में दोनों चेंज है। ओके, वैसे यहाँ पे दिस इज द पोजीशन 1 3, दिस इज 3 1, मैग्नीट्यूड में सेम है, साइन में चेंज है, दिस इज 7 एंड -7, 2 3 एंड 3 1 पोजीशन। क्लियर? 2/2 का भी मैंने एग्जाम्पल दिया हुआ है, यहाँ पे 2i और यहाँ पे इट इज व्हाट -2i। नाउ नेक्स्ट वी डिफाइन इट इज व्हाट अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, a square matrix having all the elements below the principal diagonals as 0 is called the upper triangular matrix। सिंपल डेफिनेशन है, ये मेरा प्रिंसिपल डायगोनल, उसके नीचे के एलिमेंट हमारे 0, इट इज कॉल्ड एज व्हाट अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, एंड ट्रायंगल इज फॉर्मिंग इन द अपर सेक्शन, इट इज आल्सो कॉल्ड, देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज व्हाट अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। सेम फॉर द 2/2, ट्रायंगल इज फॉर्मिंग इन द अपर सेक्शन। नाउ नेक्स्ट लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, a square matrix having all the elements above the principal diagonals as 0 is called as lower triangular matrix। so principal diagonal के ऊपर के एलिमेंट अगर 0 होते हैं तो then it is called as what lower triangular matrix, and triangle is forming in the lower section, therefore it is called as what lower triangular matrix। ये 2/2 का एग्जांपल। now next definition, it is of conjugate matrix। so conjugate matrix depend on, it is completely on complex entries। तो entries हमारी होनी चाहिए it is what complex or maybe that can be real। okay, दोनों में से कोई भी रह सकती है। so matrix obtained from any given matrix A on replacing its elements by corresponding conjugate complex numbers is called the conjugate of A, and it is denoted as what A bar। ये स्टैंडर्ड नोटेशंस है, तो आपको कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट निकालना आता है सपोज, तो भी मैं आपको बता देता हूं। जैसे अगर मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है A प्लस IB, आपको पता है इसके अंदर A और B हमारे रियल नंबर होते हैं, एंड I इज व्हाट वी आर हैविंग स्टैंड फॉर आयोटा, दैट इज अंडर रूट ऑफ -1। तो अगर मुझे इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट निकालना है तो होगा इट इज व्हाट A माइनस IB। हम सिर्फ I को रिप्लेस करते हैं -i से, वही अगर मैं A माइनस IB का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट निकालता हूं तो I विल बी रिप्लेस बाय -i, तो मुझे मिल जाएगा A प्लस IB। जैसे एग्जांपल लेते हैं, इट इज 3 + 2i, अगर मेरे पास है कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा 3 - 2i। वैसे अगर मैं लिखता हूं जस्ट इट इज व्हाट I, तो I का सॉरी -i सपोज लिख दिया, तो -i का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट इट इज व्हाट +i। so this way we find out it is what complex conjugate of a complex number। so now we'll see the example। if we are having the matrix A as this one, 2 + √3i 5, 1 + 2i 8, and -i 7i -9 and 9 - i। अब इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट निकालना मतलब I को रिप्लेस करना पड़ेगा -i से, तो मुझे मिलेगा इट इज व्हाट 2 - 3i, यहाँ पे 1 - 2i, दिस इज वी आर हैविंग 9 + i -7i, एंड दिस इज व्हाट +i। क्लियर है ये चीज? इसको आपको याद रखना है, बिकॉज कॉन्जुगेट मैट्रिक्स को हम अभी सामने में यूज करने वाले इस डेफिनेशन को भी। तो यहां पे सिर्फ आपको एक चीज नोट करनी है कि आपको रिप्लेस करना है I को विद -i। नाउ वी डिफाइन व्हाट ट्रांसपोज्ड कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स। सो कॉन्जुगेट ऑफ अ ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स A इज कॉल्ड एज कॉन्जुगेट ट्रांसपोज और ट्रांसपोज्ड कॉन्जुगेट ऑफ A। इट इज डिनोटेड एज a⁻θ and it is defined as what a⁻θ is nothing but हम क्या कर रहे हैं मैट्रिक्स A का एक तो हम पहले निकाल रहे हैं कॉन्जुगेट मैट्रिक्स, बाद में उसका ट्रांसपोज निकाल रहे हैं, उसे हम कहते हैं इज व्हाट ट्रांसपोज्ड कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स, दैट इज कॉन्जुगेट ऑफ ट्रांसपोज मैट्रिक्स। या फिर पहले हमने अगर ट्रांसपोज निकाल दिया, बाद में भी अगर हमने उसका कॉन्जुगेट निकाला तो भी वो सेम रहेगा, दैट इज नथिंग बट इट इज व्हाट a⁻θ। एग्जांपल देख लेते हैं, A इक्वल्स टू हमारे पास ये वाला मैट्रिक्स है जिसमें एंट्रीज कॉम्प्लेक्स है हमारे पास, और अगर हमने इसका निकाला A ट्रांसपोज पहले, A ट्रांसपोज मतलब क्या, रोज को कॉलम में चेंज कर दो या कॉलम को रोज में चेंज कर दो। उसके बाद देन वी हैव फाउंड इट इज व्हाट A ट्रांसपोज का इट इज कॉन्जुगेट। सो A ट्रांसपोज का कॉन्जुगेट निकालने के लिए आप जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं यहाँ पे जस्ट I को रिप्लेस कर देंगे -i से, तो ये एंट्री मिल जाएगी। तो ये हमारा डिफाइन होगा इट इज व्हाट a⁻θ, दैट इज ट्रांसपोज कॉन्जुगेट, या फिर इसको हम कॉन्जुगेट ट्रांसपोज भी कहते हैं इन सिंपल वे। नेक्स्ट डेफिनेशन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, इट इज आल्सो इंपॉर्टेंट वन। A square matrix A is called orthogonal if A transpose equals to 1। अब यहाँ पे मैं सिंगल मैट्रिक्स की बात कर रहा हूं, कब इसे हम ऑर्थोगोनल कहते हैं? ओके, जब मल्टीप्लीकेशन ऑफ A with its transpose is equals to the I is what? It is what? Identity matrix। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है then A is said to be orthogonal matrix। Now अगर मेरे पास दो मैट्रिक्स है, सपोज two matrices A and B are said to be orthogonal if
A ट्रांसपोज B इज इक्वल्स टू AB ट्रांसपोज इक्वल्स टू इट इज व्हाट नल मैट्रिक्स। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है, मल्टीप्लीकेशन इज इक्वल्स टू नल मैट्रिक्स ऑफ दिस टू मैट्रिसेस, देन वी से दैट A and B आर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। दिस इज फॉर द रियल मैट्रिक्स। अगर मैट्रिक्स हमारा कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स है, मतलब इंटीज कॉम्प्लेक्स, तो दैट टाइम a टू द पावर थीटा b इक्वल्स टू ab टू द पावर थीटा इक्वल्स टू 0 अगर आता है, दैट इज नल मैट्रिक्स आता है, देन वी से दैट a and b आर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। मतलब रियल मैट्रिक्स और कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स के लिए डेफिनेशन अलग अलग है अगर हम ऑर्थोगोनल उसको डिफाइन करते हैं तो। देन यूनिटरी मैट्रिक्स, a square matrix A is called unitary if a to the power theta equals to it is I। देखिए यहाँ पे ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हमने डिफाइन किया था, उसमें a ट्रांसपोज क्या हुआ था, इट इज व्हाट I। और वही अगर मेरे पास यूनिटरी मैट्रिक्स डिफाइन करना है तो उसमें इंटीज कॉम्प्लेक्स रहती है पर्टिकुलर मैट्रिक्स के अंदर, तो उसमें a टू द पावर थीटा अगर I होता है, देन वी से दैट a इज व्हाट यूनिटरी मैट्रिक्स। नाउ नेक्स्ट definition of Hermitian matrix, it is very important again because इस पे क्वेश्चन गेट एग्जामिनेशन में आ चुका है हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन के ऊपर। तो ये जो डेफिनेशन मैं आपको बताया, इट इज सिमिलर टू, इट इज व्हाट सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सो लेट अस प्रोसीड। A square matrix A which is Aij is called the Hermitian if Aij equals to Aji bar। okay, Aji bar मतलब क्या करते हैं हम, कॉम्प्लेक्स निकालते हैं, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। मतलब अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है फॉर ऑल Ij, देन द मैट्रिक्स इज सेड टू बी इट इज व्हाट हर्मिशियन मैट्रिक्स। और हर्मिशियन मैट्रिक्स के लिए a इक्वल्स टू a टू द पावर थीटा रहेगा। ओके, जैसे सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए a इक्वल्स टू a ट्रांसपोज था, वैसे यहाँ पे a इक्वल्स टू a टू द पावर थीटा, इट इज हम निकालते हैं ट्रांसपोज कॉन्जुगेट यहाँ पे। नाउ एग्जांपल इज व्हाट a इक्वल्स टू दिस वी आर हैविंग, देन हम a टू द पावर थीटा यहाँ पे निकाल के देखते हैं कि वेदर इट इज सेम और नॉट। तो देखिए ए ट्रांसपोज पहले आपने निकाल दिया, ए ट्रांसपोज निकालने के बाद इसको हम कॉन्जुगेट मैट्रिक्स निकालेंगे। इसका कॉन्जुगेट के लिए आप आई को रिप्लेस करेंगे माइनस आई से, और ट्रांसपोज के लिए रोज को कॉलम में चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे ए टू द पावर थीटा और ए देखिए सेम आ जाता है अगर आप ऑब्जर्व करेंगे इस एग्जाम्पल को तो। और यहाँ पे आप ये भी कंडीशन सेटिस्फाई होते हुए देख रहे हैं, ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई बार। मतलब ए आई जे मतलब देखिए 2 + 3i, कौन सा एलिमेंट है, कौन सा पोजिशन है इसका, 1 2, और यहाँ पे 2 1 पे देखिए 2 - 3i, तो 2 + 3i इज इक्वल टू 2 - 3i। मतलब इसका हमने कॉन्जुगेट निकाला है, तो ये कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है, तो ये एलिमेंट यहाँ पे इक्वल इस तरह से। फिर 3 - 4i, तो यहाँ पे 3 + 4i आ रहा है, 2 - 7i, तो यहाँ पे 2 + 7i आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको एक चीज नोट करना है, अगर आप डायगोनल एंट्रीज देखेंगे तो ये हमारे एक तो रियल नंबर आ रहे हैं या अदरवाइज 0 आ रहा है। तो यही इसका एक्चुअली खासियत है हर्मिशियन मैट्रिक्स का, कि उसपे गेट क्वेश्चन कैसा बना था कि द डायगोनल एंट्रीज फॉर द हर्मिशियन मैट्रिक्स आर, इट इज व्हाट 0 और इट इज रियल नंबर, यही रहेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं रहेगा। कॉम्प्लेक्स नंबर क्यों नहीं रहेगा, इट इज ऑब्वियस फ्रॉम द इट इज कंडीशन जो हमको दी हुई है। कंडीशन क्या है हमारे पास, देखिए अगर मैं ai, अगर मैं समझो aii इक्वल्स टू aii बार लिखता हूं सपोज, ठीक है, वेदर इट इज पॉसिबल, अगर मैंने सपोज लिखा इट इज व्हाट a + ib, तो ये a + ib बार के बराबर रहेगा क्या, नहीं, बिकॉज a + ib बार क्या हो जाएगा, इट इज a - ib बार। सो देयरफॉर हम कहते हैं कि जो इंट्रीज है वो कॉम्प्लेक्स नहीं रहेगी। अगर हम रियल से बात कर रहे हैं, इट इज 1 या 2 अगर हमने यहां पे लिया है, तो इसको 2 को हम 2 + i0 ले सकते हैं। सो इट इज सेम एज 2 - i0। सो ये दोनों सेम है, इसलिए डायगोनल में रियल नंबर्स वैलिड है, या फिर अदरवाइज 0 भी रहता है, दैट इज ऑल्सो वैलिड, बिकॉज 0 + i0 इज सेम एज 0 - i0। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है सिर्फ रियल नंबर और 0 के लिए। सो देयरफॉर हम कहते हैं कि हर्मिशियन मैट्रिक्स के अंदर जो डायगोनल एंट्रीज होती हैं, दे आर आइदर रियल नंबर और इट इज 0। नाउ नेक्स्ट डेफिनेशन, इट इज ऑफ स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। A square matrix A, Aij, is called skew Hermitian if Aij equals to minus of Aji bar for all Ij. Hence, for the skew Hermitian matrix, A will be equals to minus of a to the power theta. So यहाँ पे देखते हैं एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो जाएगा। So देखिए यहाँ पे एलिमेंट है 2 - 3 है, तो पहले तो आप इसको माइनस से सपोज मल्टीप्लाई कर दो, तो माइनस से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा -2 एंड इट इज व्हाट +3i, और बाद में उसका कॉन्जुगेट निकालो, so that will be what -2 - 3i। तो पोजीशन 1 2 और 2 1 पे हमारा ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। वैसे 4 + 5i है, तो इसका आप पहले कॉन्जुगेट निकालो या फिर -1 से मल्टीप्लाई कर दो, आप कुछ भी कर सकते हैं। सपोज मैंने पहले कॉन्जुगेट निकाला तो 4 - 5 आ गया, उसके बाद माइनस से मल्टीप्लाई करो, so it is what -4 + 5 आ जाता है। सो इस तरह से हर एक एलिमेंट के लिए यहाँ पे ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। और हम ये भी चेक कर लेते कि a = -a to the power theta होता है कि नहीं।
तो अगर हमने चेक किया तो पहले हमको ए ट्रांसपोज निकालना पड़ेगा, उसके लिए रोज को कॉलम में चेंज कर दीजिए, बाद में ए ट्रांसपोज का आप बार निकालिए, मतलब कॉन्जुगेट निकालिए, तो ए टू द पावर थीटा आ गया, इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए पूरे टर्म्स को यहाँ पे, तो आपको मिल जाएगा इट इज व्हाट मैट्रिक्स ए। तो यहाँ पे ए इक्वल्स टू माइनस ए टू द पावर थीटा सेटिस्फाई होता है अगर आप ऑब्जर्व करते हैं तो। अब यहाँ पे भी आप अगर एक चीज नोट करते हैं तो डायगोनल एंट्रीज जो है, डायगोनल एंट्रीज तो हमारी दिख रही कॉम्प्लेक्स नंबर दिख रही है या अदरवाइज जीरो, तो हम यहाँ पे कंक्लूड कर सकते हैं कि हर्मिशियन मैट्रिक्स के अंदर डायगोनल एंट्रीज एक तो जीरो होती है या अदरवाइज कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं। तो यहाँ पे जो कंडीशन दी है उसके थ्रू हम कह सकते हैं कि जो एलिमेंट्स है हमारे डायगोनल के वो एक तो इमेजिनरी रहेंगे या अदरवाइज जीरो। कैसे, देखिए अगर मानो वो रियल नंबर रहता है, तो रियल नंबर मतलब कोई भी आप एक रियल नंबर ले लीजिए, सपोज हमने 2 ले लिया, सो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी कि उसके लिए लिखते हैं हम इट इज 2 इक्वल्स टू, ओके 2 को हम ऐसे लिख सकते हैं इट इज व्हाट 2 प्लस i0, तो इट इज व्हाट 2 प्लस i0 अगर हम लिखते हैं तो इसका अगर मैं कॉन्जुगेट निकालता तो वो क्या हो जाएगा 2 माइनस i0 जीरो के, उसको अगर फिर मैंने इसका कॉन्जुगेट निकाल दिया, उसके बाद इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, ओके तो हमारे पास अगर इसको सिंप्लीफाई करते हैं हम तो हो जाएगा व्हाट 2 इक्वल्स टू माइनस 2, बट इट इज नॉट पॉसिबल, तो इसीलिए हमारी ये जो इंटीजर है ये रियल नंबर नहीं रहेगी बट इमेजिनरी रह सकती है। जैसा कि मैंने -3i सपोज ले लिया यहाँ पे, -3i का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा +3i, और उसके बाद उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये दोनों सेम हो जाते हैं, सो देयरफॉर वी कैन से दैट की इमेजिनरी इंटीज यहाँ पे रह सकती है। एंड सेम फॉर द जीरो को हम 0 प्लस i0 लिख सकते हैं और 0 माइनस i0 भी सेम रहेगा, सो इसलिए वो इंट्रीज जीरो भी रह सकती है यहाँ पे। सो इट इज ऑब्वियस एक्चुअली फ्रॉम द डेफिनेशन की जो हमारी इंट्रीज हैं यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ द स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स आर दैट आइदर जीरो और प्योर इमेजिनरी, इट इज ऑब्वियस फ्रॉम द डेफिनेशन। नाउ नेक्स्ट डेफिनेशन, इट इज ऑफ माइनर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ अ डिटर्मिनेंट। सो यहाँ पे पहले तो हम डिटर्मिनेंट कंसिडर करते हैं एक, ओके ऑफ 3/3, देन माइनर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ अ डिटर्मिनेंट इज अ डिटर्मिनेंट obtained by leaving the row and the column passing through that element। जैसे अगर मुझे a11 का माइनर निकालना है इस a11 एलिमेंट का, तो क्या करेंगे, जिस a11 जिस कॉलम में है और जिस रो में है उस कॉलम और रो को हम छोड़ देंगे, और जो भी बाकी बचा हुआ है a22, a23, a32 एंड a33 उसको हम डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिख देंगे। दिस विल बी द माइनर ऑफ एलिमेंट a11। क्लियर? सो माइनर मींस इट इज व्हाट जस्ट अ डिटरमिनेंट बाय सुपरसेइंग द रोज एंड द कॉलम इन विच दैट एलिमेंट लाइज। उसके बाद हम निकालते हैं माइनर ऑफ एलिमेंट a12। अब a12 के लिए देखिए हम a12 ये फर्स्ट रो में इसको हम छोड़ देंगे और सेकंड कॉलम में इसको हम छोड़ देंगे, तो बचेगा क्या a21, a23, a31 एंड a33, तो हमको ये मिल गया माइनर यहाँ पे। एंड उसके बाद माइनर ऑफ अगर हम a13 निकालते हैं तो ये कॉलम छोड़ दीजिए, ये रो छोड़ दीजिए, ये बचेगा तो इसको आप लिख दीजिए। तो आप ऐसे कोई भी एलिमेंट का आप माइनर निकाल सकते हैं बाय सुपरसेइंग द रोज एंड द कॉलम इन विच दैट एलिमेंट लाइज। तो वैसे अब हम डिफाइन करते हैं कोफैक्टर। सो कोफैक्टर भी माइनर रहता है बट विद प्रॉपर साइन रहता है। तो नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं हम कोफैक्टर की, कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ अ डिटरमिनेंट। सो कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट aij ऑफ अ डिटरमिनेंट इज द माइनर मल्टीप्लाइड बाय -1 to the power i plus j। अभी ij क्या है आपको पता है, i डिनोट इज व्हाट ith रो एंड j डिनोट इज व्हाट jth कॉलम, तो हम वहां पे ith रो jth कॉलम को हम ऐड कर देते हैं, ठीक है, उनका नंबर्स ऐड कर देते हैं और देन -1 to the power ले लेते हैं। तो जो भी आता है ये एक तो -1 रहेगा नहीं तो +1 रहेगा, तो वो -1 हम मल्टीप्लाई करते हैं माइनस से एंड दैट विल डिफाइन इट इज व्हाट कोफैक्टर। तो एग्जांपल में देखते हैं क्लियर हो जाएगा। तो एग्जांपल में मैंने जो डिटरमिनेंट लिया हो सेम लिया हूं जो मैंने पिछले एग्जांपल में लिया था। तो डिटरमिनेंट क्या था हमारा पिछले एग्जांपल का, इट इज डिटरमिनेंट ऑफ a इक्वल्स टू, हमारे पास 9 एंट्रीज थी a11, a12, a13, a21, a22, a23 एंड दैट a31, a32 एंड a33। तो अगर मुझे निकालना है कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट a11 का निकालना है तो पहले तो आपको माइनर निकालना पड़ेगा। माइनर निकालने के लिए ये रो और ये कॉलम छोड़ दिया, आपने इसका माइनर निकाल दिया और उसको फिर मल्टीप्लाई किया -1 to the power 1 plus 1। 1 plus 1 क्यों, बिकॉज यहाँ पे जो एलिमेंट है वो फर्स्ट रो में है और फर्स्ट कॉलम में है, तो इसलिए हो गया 1 1, इसलिए हमने 1 plus 1 किया और -1 to the power 1 plus 1 plus 1 होता है बिकॉज ये हो जाएगा 2 और -1 to the power 2 इज व्हाट +1। वैसे हम कोफैक्टर निकालते हैं अगर a12 का, तो a12 में कोफैक्टर में आपको पहले तो माइनर निकालना पड़ेगा। माइनर निकालने के लिए आप ये रोज और कॉलम के एलिमेंट छोड़ देंगे
ये आप लिख लेंगे और बाद में उसको मल्टीप्लाई करेंगे -1 टू द पावर 1 प्लस 2 से, बिकॉज एलिमेंट पोजीशन क्या है इसका 1 2 है तो 1 प्लस 2 कर दिया तो ये हो जाएगा 3 एंड -1 टू द पावर 3 क्या होता है -1, तो -1 हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया। वैसे फिर हमने यहाँ पे 1 3 के लिए निकाला 1 प्लस 3 4 हो जाता है, मतलब -1 टू द पावर 4 प्लस 1 हो गया और ये हमने यहाँ पे माइनर लिख दिया A13 का। तो आई सपोज को फैक्टर क्लियर है, बिकॉज ये को फैक्टर का जो कंसेप्ट है जब हम इनवर्स निकालते हैं बाय एडजॉइंट मेथड तब हमको लगता है, क्योंकि हमको उसमें मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर निकालना पड़ता है। तो नेक्स्ट डेफिनेशन हमारा वैसे मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर ही है। सो मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स कैन बी ऑब्टेन्ड बाय अरेंजिंग ऑल कोफैक्टर्स इन रेक्टेंगुलर फॉर्म in such a way that position of an element and its cofactor is same. So यहाँ पे हम देखते हैं साइन कन्वेंशन फॉर द मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर फॉर 3/3। जैसे आपको मैंने बताया कि अगर इस पोजीशन पे अगर एलिमेंट है तो उसको मल्टीप्लाई करते हैं हम -1 टू द पावर 1 प्लस 1 से, तो ये हो जाएगा इट इज व्हाट +1, बिकॉज यहाँ पे 2 आता है। फिर -1 टू द पावर 1 प्लस 2 ये होता है -1, -1 टू द पावर 1 प्लस 3 ये होता है +1, तो वैसे ही हो जाएगा माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ये 3/3 के लिए हमारे साइन कन्वेंशन है मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स के, ये आपको बस याद रखना है। अब इसके बाद हम मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर निकालते हैं। मैट्रिक्स हमको ये दिया हुआ है, इसका मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर निकालना है, तो इसमें हम कैसे निकालेंगे देखिए 1 का पहले आप माइनर ले लेंगे, उसको प्लस से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 का आप माइनर निकाल लेंगे और उसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 का माइनर निकालेंगे उसको यहां पे लिखेंगे, उसको प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे। सेम यहां पे देखिए ये माइनर निकाला हमने 2 का, ये कॉलम और ये रो छोड़ दी, बाकी जो एलिमेंट है उसको हमने डिटरमिनेंट में लिख दिया, उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। सेम फॉर द 3, देन फॉर दिस 2, 3 और 4 के लिए हमने ऐसा कर दिया और ये साइन कन्वेंशन हमने यूज किए, इसको प्लस, इसको माइनस, इसको प्लस से मल्टीप्लाई किया, इसको माइनस प्लस माइनस एंड दिस इज व्हाट प्लस माइनस एंड प्लस। या अदरवाइज आप अगर ये चीज आपको दिक्कत है तो आप फिर इसको याद रखिए, इसके थ्रू भी आप कोफैक्टर्स निकाल सकते हैं। तो आपने हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर निकाला, उसको उसी पोजीशन पे डाल दिया जिस पोजीशन पे वो एलिमेंट था, तो आपको मिलेगा इट इज व्हाट मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स। इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं वेरी इजीली, 2/2 डिटरमिनेंट को इट इज 3 into 4 देन 2 into 6 हो गया, ये दैट इज 12 - 6 और इसको आप इवैल्यूएट कर देंगे, तो आपका आ गया मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स। अब हम मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर का यूज करके अभी एडजॉइंट मैट्रिक्स डिफाइन करते हैं। Adjoint of a matrix, it is defined as adjoint of a square matrix A is the transpose of matrix of cofactors of A and it is written as what ADJ of A, that is adjoint of A. So it is very simple definition. Adjoint of A is nothing but the matrix of cofactor जो निकाला उसका ट्रांसपोज ले लो, ट्रांसपोज मतलब रोज को कॉलम में चेंज कर लो या फिर कॉलम को रोज में चेंज कर लो। तो यहाँ पे हमने मैट्रिक्स ए लिया हुआ है, मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर जस्ट हमने इसका निकाला हुआ था वो मैंने यहाँ पे लिखा, इसका हमने ट्रांसपोज ले लिया तो दैट डिफाइंड इट इज व्हाट एडजॉइंट ऑफ ए। ट्रांसपोज मतलब इस रो को हमने कॉलम में चेंज कर दिया, इस रो को कॉलम में चेंज कर दिया, इस रो को कॉलम में चेंज कर दिया, या फिर कॉलम को भी आप रो में चेंज करते हैं, सेम आंसर मिलेगा। देन 24 इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। सो स्क्वायर मैट्रिक्स बी इज सेड टू बी द इनवर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इफ एंड ओनली इफ AB equals to BA equals to it is what identity matrix I, मतलब multiplication of two matrix it is come out to be it is what I, then they are said to be the inverses of each other। इसको हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि it is A is inverse of B और B is inverse of A, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है। और इनवर्स को हम डिनोट करते हैं a to the power -1 से, ये हमारा नोटेशन है, therefore हम लिख सकते हैं a to the power -1 with this A, that will be equals to it is what I, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन I आना चाहिए। Now next, inverse of matrix by adjoint method. So it is just a definition. So आपको याद रखना है, it is a formula we are having, A inverse equals to 1 upon determinant of A into adjoint of A. अगर हम ये कैलकुलेट करते हैं तो that will define is what A inverse. So provided it is that condition is that determinant of A is what not equals to 0. Determinant of A not equals to 0 बोल रहे हैं क्यों? Because अगर ये 0 रहा तो 1/0 आएगा और 1/0 तो डिफाइंड ही नहीं है, it is nothing but it is what it tends to infinity. So therefore अगर इनवर्स को एग्जिस्ट होना है तो उसके लिए कंडीशन कंपलसरी है, determinant of A is what not equals to 0. Then idempotent matrix is defined as a matrix such that A square equals to A is called as what idempotent matrix. अब A square क्या होता है? It is what A into A. अगर A into A equals to A होता है then that matrix is said to be what idempotent matrix. अभी मैं कुछ डेफिनेशन यहाँ पे जो बता रहा हूँ वो गेट पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान से सुनिएगा। मैं इस पे एग्जांपल भी लिया हूँ, अगर मैंने मैट्रिक्स A यहाँ पे ले लिया ये क्वांटिटी का और मैंने अगर A स्क्वायर निकाला दैट इज A into A, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन किया तो आपको सेम मैट्रिक्स मिलता है विच इज इक्वल्स टू इट इज व्हाट A।
अब मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन आई सपोज आपको आता होगा, कैसे करते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन। देखिए मैं एक एलिमेंट का आपको करके बताता हूं। हम रो वर्सेस कॉलम मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन करते हैं, मतलब इस रो को मैं कॉलम से मल्टीप्लाई करते जाता हूं तो मुझे एलिमेंट मिलते हैं। जैसे फर्स्ट रो को अगर मैंने फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपको मल्टीप्लाई करना है, बाद में एडिशन करना है। तो 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा, इट इज व्हाट 4, देन -2 इंटू -1 +2, उसके बाद -4 इंटू 1 इट इज व्हाट -4, तो ये कैंसिल मिला हमको, इट इज व्हाट 2। वैसे अगर ये एलिमेंट चाहिए तो मैं इस रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे ये एलिमेंट मिलेगा, फिर मैं फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे ये एलिमेंट मिलेगा। वैसे बाकी के एलिमेंट हम निकाल सकते हैं। सेकंड रो को आप मल्टीप्लाई कीजिए फर्स्ट कॉलम से, सेकंड रो को मल्टीप्लाई कीजिए सेकंड कॉलम से, सेकंड रो को मल्टीप्लाई कीजिए थर्ड कॉलम से, आपको ये एलिमेंट मिल जाएंगे। सेम वी कैन गेट द एलिमेंट ऑफ दिस थर्ड कॉलम। तो आपको अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको a² = a आता है। तो जिस मैट्रिक्स के लिए भी ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है उस मैट्रिक्स को हम कहते हैं व्हाट इज इट, एडम्पोटेंट मैट्रिक्स। नाउ मूविंग फर्दर, नाउ वी डिफाइन इनवॉलंटरी मैट्रिक्स। A matrix A is called involuntary matrix if A² equals to it is what I। तो A² का वैल्यू अगर यूनिट मैट्रिक्स आता है then it is called as what involuntary matrix। अब आपको पता है कि ऑब्वियस I² हमेशा क्या होता है, इट इज I हमारा क्या, इट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर हम दोनों आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो आपको फिर से क्या मिलता है, इट इज व्हाट आइडेंटिटी मैट्रिक्स। देयरफॉर यूनिट मैट्रिक्स इज ऑलवेज इनवॉलंटरी मैट्रिक्स। देन पीरियोडिक मैट्रिक्स डिफाइन करते हैं हम। A matrix A is called periodic matrix if A to the power k plus 1 equals to it is what A, where k is what positive integer। तो मैट्रिक्स को पीरियोडिक कब कहेंगे, जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, A to the power k plus 1 equals to it is what A। So if k is a least positive integer for which this condition is satisfying, that is A to the power k plus 1 equals to A, then k is said to be what period of A। अगर हमने सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर k यहां पे फाइंड आउट कर लिया जिसके लिए कंडीशन सेटिस्फाई होती है, देन k is said to be what period of A। Now if we choose k equals to 1 suppose, then this 1 plus 1 क्या हो जाएगा, it is 2, मतलब A² will be equals to A, hence we call it as a idempotent matrix। अगर k का वैल्यू 1 आ जाता है then matrix is said to be what idempotent matrix, मतलब periodic matrix से हमने फिर डिडक्ट किया, it is what idempotent matrix for k equals to 1। Now next हम डिफाइन करते हैं nilpotent matrix। A matrix will be called as nilpotent matrix if A to the power k equals to the null matrix, where k is what, it is integer। So अगर हम फिर से बोलते हैं कि अगर हम ऐसा least positive integer k फाइंड आउट कर सकते हैं जिसके लिए A to the power k equals to क्या है, null matrix, then this k is said to be what index of that nilpotent matrix। एक मैं एग्जांपल भी यहां पे लिया हूं nilpotent मैट्रिक्स के लिए। A इक्वल्स टू अगर हमारे पास है AB -A² -AB, ये हमारे पास A और B नॉन जीरो क्वांटिटी है, तो मैं इन जनरल ले रहा हूं यहां पे। तो अगर मैं A² निकालता हूं तो A² विल बी व्हाट, इट इज A इंटू A, आपको पता है। सो रो वर्सेस कॉलम यहां पे आप मल्टीप्लाई कीजिए। मैं आपको एक मल्टीप्लिकेशन करके बताता हूं। अगर मैंने ये पहले रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई किया सपोज, तो मुझे क्या आएगा, इट इज व्हाट, देखो AB इंटू AB, दैट विल बी द A² B², देन माइनस there is AB² into -A², that will be what -A² B², मतलब ये आ जाएगा, it is what 0। वैसे फिर बाकी एलिमेंट भी हमारे पास 0 आते हैं और हमें क्या मिलता है, it is what null matrix। तो यहाँ पे ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, A² will be, it is coming to be the 0, therefore we can say that this 2 is nothing but what index of this nilpotent matrix। So A is the nilpotent matrix whose index is what 2। Now we define the last definition, it is what of equal matrices। So the two matrices are said to be the equal if they are of the same order and the elements in the corresponding positions are equal। So these two conditions should be satisfied for the matrix to be equal। So A equals to अगर मैं लेते हैं 3 - 5 0 9, तो B भी हमारा 3 - 5 0 9 है। यहाँ पे आप देख रहे थे ऑर्डर दोनों का 2/2 है और करस्पॉन्डिंग जो पोजीशन है ओके एलिमेंट्स का वो भी सेम है, 3 3 है, यहाँ पे -5 5 है, यहाँ पे 0 0, इट इज व्हाट 9 9 9। So this is the condition for the equal matrices। So A equals to B we can write now here। So this is all about the basics of matrices। मैंने जो associated definitions थी, मतलब basics जितनी भी सब matrices यहाँ पे बताई हैं, it is important as far as the gate point of view। so, अगर आपको कोई भी दिक्कत हो, डिफिकल्टी हो, तो आप डायरेक्टली कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उसको मैं सॉल्व करूंगा। एंड एट लास्ट आई सेड इज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल। मैंने यहाँ पे आपको कुछ वीडियो की लिंक दी है, अगर आपके रिलेवेंट है तो जरूर देखिए। और प्ले लिस्ट दिया हुआ है मैंने यहाँ पे मैट्रिक्स का, तो आप मैट्रिक्स में जाके मैट्रिक्स के और कुछ भी वीडियोस देख सकते हैं। और यहाँ पे बीच में आप क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।